स्क्रीन पे देखिए. So equation of a plane we already started discussing, and now there is a very important subtopic: plane passing through the intersection of two planes. Observe that there is a plane, say pi 1, this one, and there is a plane pi 2, right? If they are intersecting, as you can see, the two planes will always intersect at a line. Therefore, their intersection is always referred to as the line of intersection. Earlier, recall when in ninth class or 8th class, there were two lines. And if they were intersecting, so we used a term like this as their point of intersection, right? So earlier, since it was only a point, the point of intersection terminology was used. If two planes are intersecting, and the easier way to imagine a situation is take any sheet of a paper and fold it. So crease will be formed. So that crease is actually where these two of the separated planes are intersecting. Now, two planes are intersecting via line L. Now there is a plane, say pi 3 initially, which is passing through their intersection. You can always imagine the existence of, say, this plane also. You can always imagine the existence of this plane also. What does that mean? That there will be infinitely many planes which will pass through their line of intersection. And the easiest way to visualize this, consider your any, say, maths textbook. You have a front cover, you have the back page. So front cover, this is a back page. Now you just open the book and scroll it. So what do you observe? That all the pages in your book, they are actually passing through this line of intersection. So infinitely many planes can pass. Now we are interested in their equation, but the problem is we cannot write down the equation for the infinitely planes. I must be provided with some specific condition as well, right? Another visualization is over here. That is where is the same thing. So if two planes are intersecting, this and this, so they are intersecting, say, at this line. So one of the plane shown by, say, plane P. So this is one of the possibility. Now, how we are going to get the equation of such plane? The equation of such plane is given by the following rule. I will be directly focusing on the Cartesian form because that is easier for us to understand. Similarly, in homework, you can check out this vector form. So check kariye, two planes in Cartesian form, if they are given by a1x plus b1y plus c1z is d1. Second plane is a2x plus b2y plus c2z is d2. So any plane through their intersection is given by this formula. First plane plus lambda times second plane equal to 0. But do remember, while I am saying first plane, make it sure to make RHS as 0. So bring this D1 to LHS. Similarly, bring this constant to left hand side so that RHS would become 0. So first plane plus lambda times the second plane is the equation of all infinitely many planes. But again, if there are infinitely many planes, general equation is with me. But how I am getting a specific plane? I must be provided with some additional information. So what type of additional information will be given to you? Majorly, there are four possibilities.
Let me now consider all those 4 cases. The first one, find the equation of a plane through the intersection of planes. So this is actually highlighted keyword. So in all the questions which will follow, you will observe intersection, passing through the intersection of 2 planes. Check it out. Passing through line of intersection of 2 planes. Passing through line of intersection of 2 planes. Line of intersection of 2 planes. Line of intersection of 2 planes. So all the questions have the similar language. So if the concept is clear, you can easily attempt all these questions. So आज इन्हीं को हम discuss करेंगे. आप check करिए, first plane is this, second plane is this. So given planes are, it is good that already planes are given in the Cartesian form. Otherwise, I would prefer to convert them in Cartesian. Make it sure RHS is 0, already made by you. And this is the second plane. Any plane through line of intersection of the given planes is, क्या रूल बताया था? सिंपल, फर्स्ट प्लेन ये ले लिया प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन and equate to 0. That's it. तो प्लीज मेक इट श्योर ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको ये पहला स्टेप क्लियर है, क्योंकि उसके बाद तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. Identification in a very first step is essentially required. So now there is one condition given to me that this plane, जिस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं उसको रेफर कर रहा है, that this plane passes through plane 3, passes through the point 2 to 1. So what does that mean? It will satisfy the equation of the plane. तो बस x की जगह यहां पर 2 रख दीजिए, y will be replaced by 2 and z is 1. So 3 into 2 minus 2 plus 2 into 1 minus 4, ये यहां रख दिया और प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस z minus 2 ऑलरेडी था and this is 0. Solve it. So this is 6 minus 4, 2, and this is plus 3 lambda is 0. I have lambda key value as minus 2 by 3. Once I have the value of lambda with me, using lambda in equation 3, in equation 3, required equation of plane is, वो क्या हो जाएगी? सिंपल है. अब तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आई वो यहां पर रिप्लेस कर देंगे. फर्दर टेक दी एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. 3 आएगा एलसीएम, एक 3 आरएचएस में जाके इधर 0 और यहां इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या दे देगा ये? 9x minus 3y plus 6z and minus 12, और ये minus 2 के साथ ओपन द ब्रैकेट. तो ये तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन और कैलकुलेशन की बात आई है. कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई प्लस
4z and minus 8 is 0, which is the required equation of the plane. यहां तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं था कि आपको वेक्टर इक्वेशन बतानी है या कार्टेशियन. समटाइम्स पॉसिबली क्वेश्चन इज गिवन इन कार्टेशियन, बट जानबूझ के एग्जामिनर यहां आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछ ले. तो अब मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं. अगर वेक्टर इक्वेशन पूछ भी ली होती तो मैं पहले तो ऐसे ही सॉल्व करता, और लास्ट स्टेप में इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर डॉट प्लेन. देखिए ऐसे करा है हमने, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप एंड दिस इज इक्वल टू 8. ये माइनस 8 इधर आकर ऐसे लिख देंगे. So that would be the required vector form of the plane. So this is first of the possibility. अब सब कुछ एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे पहले जो है वो सारा वर्किंग रूल यहां तक सेम जाने वाला है, यहां इक्वेशन 3 तक. तो हाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट विल डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन. प्लीज चेक इट आउट. समझिए पहले एक बार अपने आप. Find the equation of a plane through the line of intersection of this and this. तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां पर. आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, प्लेन्स की इक्वेशन से लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी फर्स्ट प्लेन, ये -1 कर देंगे एलएचएस में लाकर, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन एंड -5 एंड दिस इज 0. इसे यहां को समझ आ जाएगा कि वाई आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट एंड कंबाइनिंग लाइक टर्म्स. पिछले क्वेश्चन में करूं या ना करता एक ही बात थी, यहां जरूरी है. चेक करिए, ओपन द ब्रैकेट, तो x के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड, और कांस्टेंट बच गया -1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों को लेबलिंग कर दीजिए. अब इस प्लेन में जो ये लिखा गया है, ये और ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेयर 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, दे आर दी dr of normal to this plane. That is the basic fundamental understanding कि आपके पास किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं वो एक्चुअल में उसके प्लेन के नॉर्मल के dr हो जाते हैं. तो इस प्लेन के नॉर्मल के dr ये आ गए. Why I am considering these, अब क्लियर होगा. Look at the additional condition, which is, अब उस प्लेन की बात कर रहे हैं जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं. अब क्या कहा है, which is माने this plane is perpendicular to this plane. Now plane 2 is perpendicular to the plane, कौन सा, x minus y plus z is 0, whose dr of normal क्या है,
इसके नॉर्मल के dr ये हो गए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। अब विजुलाइज करिए ये डायग्राम जो मैंने यहां बनाया है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये दो प्लेन्स हैं। मान लीजिए ये वाला है रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, तो दिस इज प्लेन 2 whose इक्वेशन वी नीड टू फाइंड। और साथ में ये क्या है, दिस इज द गिवन प्लेन। गिवन प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन है ये। सो दिस इज ऑलरेडी, इसकी इक्वेशन मुझे पता है। अब लॉजिक एक सिंपल लगाएंगे। प्लेन वन, प्लेन वन अगर ये था, इसका नॉर्मल फैक्टर ये हो जाएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। प्लेन टू जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे निकल जाएगा विद अ स्पेशल थिंग। ऑलरेडी चेक करिए कंडीशन क्या रखी थी, ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, डोंट यू थिंक सो दीज टू नॉर्मल्स मस्ट बी आल्सो परपेंडिकुलर? दिस इज अ विजुअलाइजेशन। ये अगर आपको समझ आ गया, बिलीव मी 3D की कितनी चीजें आगे और अब आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इन अ क्रस्क सिंपल, अब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर then their normals are also perpendicular. And of course normals सिर्फ लाइन्स ही तो हैं, दो लाइन्स आई हैं। अब दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, ये कब होता है? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ देयर drs माने 1 × 1 + 2 लैम्डा, ये इसके dr ये रहे और इसके dr ये रहे, दोनों प्लेन्स के। तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये तो हम वेक्टर्स से पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। मेन ये था। इसके बाद तो ओपन द ब्रैकेट और ये -1 -3 लैम्डा +1 +4 लैम्डा इज 0। अच्छा 6 -3 3 लैम्डा, 1 से 1 कैंसल, इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। यूजिंग इन इक्वेशन 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या हो जाएगी? आप लैम्डा की वैल्यू देखो 2 में रख सकता हूं मैं और 1 में भी। आई वुड प्रेफर 1 में रखना। रीजन, 1 में रखूंगा तो मुझे लैम्डा सिर्फ एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। 2 में रखूंगा तो आई नीड टू रिप्लेस लैम्डा 4 टाइम्स, फिर उनके अलग अलग एलसीएम निकालो और सॉल्व करो। इसीलिए 1 में रखा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। एंड ये आ गया -1/3, 2x + 3y + 4z -5 is 0। Usually, usual method से you take the LCM, open the bracket and combine like terms. So x, ये 3y से 3y cancel, -z and ये कितना आ रहा है 5 - 3 + 2 is equal to 0, which is the required equation of the plane. सेकेंड पार्ट वो अब आप इजीली कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन सो ऑब्टेन्ड। इस प्लेन का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम ओरिजिन। वी हैव अ डायरेक्ट फार्मूला, आप वो यूज कर लेंगे। इजीली यू हैव दिस।
ax1 plus by1 plus cz1 plus d का mod upon under the root a square plus b square plus c square. That we already have discussed. My focus is right now in a chat box. आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी. 33 स्टूडेंट्स हैं इस समय, तो I would love to see the responses by all of you, yes or no. Okay, Krishan, Bhavya, Utsav, Isha, Pratiksha, Akanksha, Vanshika, Aryan Verma, Harsh Sharma, Upasna, Sridhar, Rajneesh, Aditya, Arjav, Pranav, Aditya, Nirval, Pulkit, Mehak, Tanmay, Dhananjay, Keshav Mittal, Sharanya, Shikhar, Sham, Anshul, Yashra, Jasnoor, Srishti. Did I speak 33 names? I don't think so. यार फिजिकली और मेंटली सभी अवेयर और रहा करो क्लास में. अब मैंने उतना सोचना छोड़ दिया है कि 51 की क्लास है तो सबको होना चाहिए, राइट? तो जो आए वो प्लीज अपनी लर्निंग के लिए मेरी क्लास में आ रहे हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इट 10 times. I don't mind it to explain each and everything again and again. पर्सनल अटेंशन चाहिए, यू मैसेज मी. मैं कभी ना कभी संडे को या अलग से टाइम निकाल के आई विल टेक द पर्सनल क्लास. सैटरडे को अभी लास्ट सैटरडे को देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट, आप ही की क्लास से था, ओनली वन स्टूडेंट, एंड आई टॉट दैट स्टूडेंट फॉर मोर देन 1 hour. मुझे याद नहीं है कौन था, श्रीधर शायद. एनीवे, yes, Shikhar, it was Shikhar. So you need to come forward with your doubts. I am always here to help you out. Okay. Check out this question, a very similar question. Find the equation of a plane passing through the line of intersection of the planes this and this. तो यहां से देखो इतनी सी स्टेटमेंट पढ़ते ही, अब मैं थोड़ा और शॉर्ट में लिख देता हूं. प्लेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0. ओपन द ब्रैकेट करेंगे हम क्विकली. एंड दिस इज इक्वल टू 0. जैसा बताया, आप दोनों को अलग अलग 1 और 2 कह दीजिए. अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें मैं क्या बता दूंगा कि dr ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2 क्या हो गए हैं वो, 2 प्लस 5 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा एंड माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा. अब जरा इस चीज को विजुलाइज करते हैं. क्या कहा है, मान लो ये वाला प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है ये, और ये प्लेन पैरेलल गिवन है इस लाइन के. ये रही लाइन whose equation is known to me. Again there is a simple visualization. इस लाइन के एक तो drs क्या है, 2, 4, 5. Imagine this, ये प्लेन है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये रहा, ये मेरा n वेक्टर है, और इस नॉर्मल वेक्टर के ही तो ये drs हो जाएंगे. तो ये येलो लाइन जो वेक्टर है आपका नॉर्मल वेक्टर, और ये ग्रीन लाइन
ये एक्चुअली आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिंपल विजुअलाइजेशन था, डीआरस का डॉट प्रोडक्ट कर दिया एंड this will equal to 0, followed by the usual method. Now I'll not solve that. लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में, टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, you will have your required answer. तो या तो आपको, एक मिनट, या तो आपको प्लेन जो निकालना है वो दिया होगा परपेंडिकुलर टू सम प्लेन लाइक दिस, या तो परपेंडिकुलर टू सम प्लेन देंगे या पैरेलल टू द लाइन देंगे। अगर परपेंडिकुलर टू लाइन दे दिया यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर। अगर आपको पैरेलल टू प्लेन दे दिया, पैरेलल टू प्लेन, तब भी आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे यूनिकली। तो फिक्स कंडीशन है, क्यों, वो लॉजिकली सोचिए कि परपेंडिकुलर प्लेन्स होंगे तभी इनके नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल टू लाइन होगा तभी ये लाइन और इसका नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, वो तो आप जब एक रफ विजुअलाइजेशन करेंगे इस तरह से वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। चेक आउट दिस पॉसिबिलिटी, find the equation of a plane through the line of intersection of these two planes। पहला इतना पार्ट देखते हैं, कार्टेशियन में आप इक्वेशन लिख लेना प्लेन्स की, फिर लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी, क्या ले सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 6, ये इससे मिल जाएगा कार्टेशियन में, प्लस लैम्डा टाइम्स इस प्लेन की कार्टेशियन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 4z, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स। बहुत ध्यान से करना, यहां गलती हो सकती थी। अब सिर्फ यहां -4 लैम्डा इंटू जेड बचा है, और कांस्टेंट की बात करूं तो सिर्फ -6 आया है। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट ओपनिंग द ब्रैकेट एंड कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। अब हम क्वेश्चन को फर्दर पढ़ते हैं, क्या कहा है। जो प्लेन निकालना है, ये चलो उसकी इक्वेशन है, ये रहा, चलिए ये प्लेन है, दिस प्लेन whose perpendicular distance from origin is unity। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से इसके ऊपर आया परपेंडिकुलर, और वो आपको गिवन है 1 के इक्वल, यूनिटी। तो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन whose equation is here। इन केस याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देता हूं, पॉइंट है x1 y1 z1, और ये है प्लेन। हम पी क्यू लेंथ की बात कर रहे हैं, प्लेन की इक्वेशन ये रही, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जीरो। तो पी क्यू इज गिवन बाय मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बस मुझे याद होना चाहिए,
सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दो इस प्लेन में और वो 1 के इक्वल है। तो यूनिटी किसके इक्वल है, फर्स्ट जीरो, सेकंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, सिर्फ -6 बचेगा यहां पर। ये ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये जीरो है x1 y1 z1, नीचे वाली टर्म भूल मत जाना, वो ये होगा। Squaring both the sides, simplify, you will get your desired answer. So my purpose is mainly focusing on the concept and believing that you all will do the correct calculations correctly. Though the fact is, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आज भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो सिली मिस्टेक्स, सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स, जो नर्सरी से कैरी फॉरवर्ड 12th तक करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, वो आप ही के पास है। हाउ टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। So please complete this question in your homework. Check out this question. This is the last possibility in journal इस सब टॉपिक में। Find the Cartesian equation of a plane passing through the line of intersection of these two planes. मैं पहले ही इन्हें वेक्टर से कार्टेशियन में करके लिख देता हूं। तो लेट रिक्वायर्ड प्लेन बी, इतनी स्टेटमेंट पढ़ते ही इसका कार्टेशियन क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स इसका कार्टेशियन सेकंड वाले प्लेन का 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9। ठीक है, ये इधर आकर माइनस एंड दिस इज 0। ओपन द ब्रैकेट और वही x के कोफिशिएंट वगैरह कंबाइन करते चलिए, सिंपल चीज है ये। यहां आ जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा, फिर y भी आएगा और फिर प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू z, कांस्टेंट क्या बचा, -7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लेट अस नाउ रीड द कंडीशन सच दैट, अब कंडीशन क्या है, intercepts made by the plane on x-axis and z-axis are equal. Recall the basic concept of intercept form of a plane. तो intercept form of a plane ये होती है x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. तो जब इंटरसेप्ट्स की बात करी गई है तो आई नीड टू राइट माई प्लेन इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल रूल होता है RHS शुड बी 1। तो वो 1 कैसे बनाएंगे, एक तो ये इधर आकर 7 प्लस 9 लैम्डा हो गया, थ्रू आउट मैं डिवाइड कर दूंगा 7 प्लस 9 लैम्डा से, और ये टर्म डिवाइड होकर नीचे आ जाएगी। तो आई एम श्योर एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, ये लिखा होगा और x का कोफिशिएंट वो यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट टू सेव द टाइम ये डायरेक्ट लिख दिया है 7 प्लस 9 लैम्डा और ये आ गया 2 प्लस 5 लैम्डा एंड हेयर इट इज z over 7 plus 9 lambda upon minus 3 plus 3 lambda, and this is equal to 1.
अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। इफ यहां तक समझ आ गया फिर तो सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जेड इंटरसेप्ट। तो इक्वेट कर दीजिए, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये जेड इंटरसेप्ट है। तो 7 + 9 लैम्डा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, डू नॉट मिस दैट। ये आ गया, एक्स और जेड इंटरसेप्ट इक्वल कर दिए। कई बार स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या सोचते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व कर दिया, लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी और उससे दो आंसर्स आ जाएंगे लैम्डा के। जबकि लॉजिकली सोचिए, 7 + 9 लैम्डा कैन नेवर बी 0। मतलब लैम्डा कैन नेवर बी -7/9। ये टर्म और ये टर्म डायरेक्ट कैंसल। आई विल कम टू दिस पार्ट कि ये क्यों नहीं हो सकता। ये आ गया। बस अब आपने इसे सॉल्व करा तो सिंपली लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 5 यूज मैं कहां करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। सिंपली यहां यूज करिए, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड यूनिक आंसर। लैम्डा -7/9 क्यों नहीं हो सकता, एनीवन? अगर लैम्डा -7/9 हो गया, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0। इसका मतलब x/0 + y/0 + z/0 इज 1। x intercept 0, y intercept 0, z intercept 0. What does that mean? That the plane is passing through the origin. और अगर कोई प्लेन ओरिजिन से पास करेगा तो वो तो इंटरसेप्ट बना ही नहीं पाएगा। Therefore, lambda can never be -7/9. Try to visualize this situation. Lastly, homework for the day. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट हो नहीं पाया है तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो यहां दिए ये तो बिल्कुल अभी जो करवाया है। एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस जेड इंटरसेप्ट, पिछले क्वेश्चन में इक्वल थे। तो ये फर्स्ट 4 विल बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क। आई विल शेयर देम सेपरेटली। So that's all for today. You can leave the class. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Take care. Thank you, sir. Okay, thank you. Yes, please leave the meeting. Jafnoor, Yash Mittal, Anshul,